Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine and staying safe at home. Today, we will revise our lesson number 10, Preservation of Food. When we started this unit, Food, we read some chapters like food making in plants, not enough food, searching for food, producing food, and now we are going to discuss preservation of food. That how can we preserve the food? Preserve means save. Especially in summer season, it is very important to protect the food from the spoiling, because in summer season food gets spoiled easily. So how can we preserve it? First we will learn how food gets spoiled. Spoiled means kharab hona. So when you leave a bowl of cooked rice in the kitchen for a day, it starts smelling bad and becomes unfit for eating. हैव यू सीन मम्मा खाना सुबह बनाते हैं तो मम्मा दोपहर तक उसको आफ्टरनून तक इवनिंग से पहले पहले तक फ्रिज में रख देते हैं या उसको एक बार फिर से बॉईल कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं? बिकॉज इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग, क्योंकि वो ख़राब होने का डर होता है और वो जल्दी से ख़राब हो जाता है. बट इफ़ यू स्टोर अनकुक्ड राइस इन अ जार इन द किचन फॉर अ होल मंथ, इट रिमेन्स फाइन. वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है कि हमारे किचन में पल्सेस रखी हैं, राइस रखा है, व्हीट फ्लोर रखा है एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर, पर वो ख़राब नहीं होती. बट जो कुक्ड फूड है वो एक दिन में, कुछ घंटों में ही ख़राब हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कुक्ड फूड स्पॉइल्स ईजिली एज इट हैज़ मॉइस्चर. बिकॉज उसमें मॉइस्चर होता है. व्हीट, राइस, पल्सेस, दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजिली बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ड्राई. सो सम फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, spices can be stored for a much longer time than milk, meat and fruits. Yes, fruits jaldi kharab ho jate hain in comparison to pulses. Why is it so? Let us consider the following examples. First is when we keep a slice of bread in the open for a day or two, we find green or black patches. स्पेशली इन समर सीज़न ये ज़रूर होता है. अगर आप ब्रेड को 1 या 2 दिन के लिए बाहर रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ फंगस विच इज़ कॉल्ड म्यूकर. एंड दिस makes our bread unfit for eating because it has a foul smell and the slice of bread has gone bad. It is not fit for eating. The slice of bread has gone bad due to the growth of a fungi, a microorganism which we cannot see with the naked eyes, is called mucor. Similarly, if we keep a glass of milk in the open for a day or two, आप कुछ घंटों के लिए मिल्क के ग्लास को ही बाहर छोड़ दें, अ फाउल स्मेल स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम इट बिकॉज वो जो मिल्क है वो ख़राब हो गया ड्यू टू बैक्टीरिया. Microorganisms are the organisms which we cannot see with the naked eyes because they are very small in size, like germs on our hand. We cannot see the germs. Even the coronavirus, it is also a microorganism. We cannot see it in the air, but it spreads. So in the same way, microorganisms like fungi or bacteria, they spoiled our food. Generally, food materials get spoiled due to the action of bacteria, fungus, insects and rats. दैट्स वाई मम्मा खाने को कवर करके रखते हैं ताकि उसमें कोई इंसेक्ट, रैट, लिजर्ड, कॉकरोच कुछ भी ना जाए. बैक्टीरिया एंड फंगी इन द एयर सेटल ऑन फूड. वो फूड पे सेटल हो जाते हैं एंड देन दे ग्रो एंड देन मल्टीप्लाई एंड देन स्टार्ट increasing their number to decompose or to destroy the food. They release some substances which affects the food quality and then it affects our health. Eating spoiled food can cause food poisoning. और अगर हम ऐसा खाना खा लें जो ख़राब है, which is spoiled by the fungus or insects or rats, then it causes food poisoning in us and it causes severe problems, health problems like stomach ache, diarrhea, vomiting, fever and so on. बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर. हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अगर उनको मॉइस्चर मिल गया है, बिकॉज आवर कुक्ड फूड हैज़ मॉइस्चर, तो उसमें वो इजीली ग्रो कर जाते हैं. दैट्स वाई कुक्ड फूड स्पॉइल्स इजीली, इट हैज़ मॉइस्चर. व्हीट, राइस, पल्सेस डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली बिकॉज दे आर ड्राई. वी कैन कीप देम इन एयर टाइट कंटेनर्स. आप देखोगे मम्मा जब भी कोई भी राशन स्टोर करते हैं, चाहे वो पल्सेस हैं, चाहे वो राइस है, चाहे वो व्हीट फ्लोर है, वो ड्राई कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है. अगर कंटेनर
थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा उसमें तो हमारा जो पल्सेस हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं. सो वी कैन कीप देम इन एयर टाइट कंटेनर्स. Insects and rats cannot enter in this, so this method is called dry storage. Cooked food spoils easily as it has dash moisture. A slice of bread gets spoiled due to the growth of a fungi called mucor. M-U-C-O-R, mucor. It is a type of microorganism. Now question arises कि how can we preserve the food? Food खराब तो हो गया due to fungus or bacteria or insects or rats. Now how can we save it? The first thing which you have seen in the kitchen जो मम्मा करते हैं सबसे most common is खाने को गर्म करना, हीट करना. सेकेंड थिंग, मम्मा खाने को गर्म करने के बाद जब वो कुछ घंटों में ठंडा हो जाता है मम्मा उसको फ्रिज में रख देते हैं. कुछ चीज़ों को हम ड्राई करके यूज़ करते हैं. सो दीज आर द मेथड्स विच वी यूज़ टू प्रिजर्व द फूड. वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर, हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम. सो द प्रोसेस इन विच फूड मटीरियल्स आर गिवन एट ए सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट. तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे हम खाने को ख़राब होने से बचाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. इट कैन बी फिजिकल लाइक ड्राइंग, इट कैन बी लाइक केमिकल जैसे हमारे सॉस में या जैम्स में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनकी वजह से जैम और सॉस एक लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट इज हीटिंग. हीटिंग फूड किल्स एट फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया. क्योंकि मैंने आपको बोला बैक्टीरिया एंड फंगस कहाँ पे ग्रो करते हैं, एट रूम टेम्परेचर. पर अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है. सो हाई टेम्परेचर किल्स द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंगस एंड इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम going bad. So when we boil milk, the food spoiling bacteria present in it gets killed. इसीलिए मम्मा जब भी मिल्क मैन हमारे घर पे आता है दूध देने के लिए तो आते ही उसको बॉईल कर देते हैं ताकि उसके सारे जर्म्स जो हैं, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सब किल हो जाएँ और हमारा जो दूध है वो ख़राब होने से बच जाए. नेक्स्ट इज द ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स टू ड्राई दैम. फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो वेल इन ड्राई कंडीशंस. वो ड्राई कंडीशंस में एक्टिव नहीं होते. सो मैनी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिच, पालक, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, जिंजर कैन बी प्रिजर्व्ड इन आवर होम्स जस्ट बाय ड्राइंग देम इन द सन. उनको सुखा लिया जाता है अच्छे से सन की हीट में. सो उनका जो मॉइस्चर है वो सारा रिमूव हो जाता है और हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और हम उनको सेव कर सकते हैं. फिश को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड. Next is the cooling, and for cooling we have fridges in our kitchens. Food spoiling bacteria do not grow well at multiply in cold conditions. As I told you, in cold conditions or in warm conditions they do not activate. So when food like milk, cooked vegetables, fruits or pulses are kept in cool places like refrigerators, they do not get bad easily. वो जल्दी से ख़राब नहीं होते. फिश और मीट को हम फ्रीजर्स में कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए फ्रीजर्स में सेव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोया चाप, मकेन टिक्की, ये सब हम फ्रीजर्स में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. डू यू नो देर इज़ अ मैथड विच इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन. उस मैथड में होता क्या है, मिल्क इज़ बॉइल्ड फॉर सम टाइम टू किल द बैक्टीरिया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन वी कूल्ड इट क्विकली. और उसको जल्दी से ठंडा भी कर दिया जाता है एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन. और जो मार्केट में हमारे पास मिल्क के पैकेट्स आते हैं, टेट्रा पैक्स आते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है. नेक्स्ट टाइम यू विल चेक द पैकेट ऑन इट, यू हैव सीन दैट there is pasteurized milk. So the French scientist Louis Pasteur developed a method for preserving milk. उन्होंने एक मेथड बनाया था, उनके नाम पे ही उसका नाम पड़ गया pasteurization. So this method is called pasteurization. In this method milk is boiled for some time to kill the bacteria present in it and then cooled quickly. उसको जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है to prevent the remaining bacteria from growing. क्योंकि हाई हीट और हाई कोल्ड उनको ख़राब होने से बचाते हैं चीज़ों को. यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर. मम्मा पिकल्स में सॉल्ट ऐड करते हैं, जैम्स में शुगर ऐड करते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रिजर्वेटिव्स. वो हमारे खाने को ख़राब होने से बचाते हैं. लाइक सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक मैंगो, लेमन एंड आंवला कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स. हम उनके घर पे पिकल्स बनाते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट बिकॉज सॉल्ट इज़ अ प्रिजर्वेटिव. सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल्स, दे आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड जेलीज. Have you seen chips packets? They are filled with a gas, nitrogen gas, which help us to make it safe.
सॉल्ट एंड शुगर रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड. सॉल्ट और शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये जो है मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं उस खाने में से, और तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं कर सकते. पोटैटो एंड बनानाज आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ वेफर्स और चिप्स बाय ड्राइंग and by using salt as a preservative. Papad is made from pulses. It is also used. Salt is used in this. So besides salt and sugar, mustard oil, vinegar and spices are also food preservatives. Using chemical preservatives like sodium metabisulfite kills all food spoiling bacteria and prevents food spoilage. तो जिनके घर पे मम्मा घर पे सॉस या जैम बनाते हैं तो मम्मा ये प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो जैम है या जेलीज हैं, जूसीज हैं, स्क्वैशेज हैं, ये ख़राब ना हो. नेक्स्ट मेथड इज़ द कैनिंग. फूड इज़ फर्स्ट हीटेड एट हाई टेम्परेचर टू किल फूड स्पॉइलिंग. आपने कोल्ड ड्रिंक के कैंस भी देखे हैं, सेम इसी तरह से कुछ खाने के कैंस भी मिलते हैं. तो उसमें क्या किया जाता है, फूड को बहुत अच्छे से हीट करके, हाई टेम्परेचर पे हीट करके, ताकि उनके सारे फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें से किल हो जाएं, और उनको एयर टाइट कंटेनर्स में बंद कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So this method is called canning. So all these are methods of food preservation like heating, drying, cooling, using salt and sugar, using chemical preservatives and canning. Next is the food spoiling bacteria do not grow well in dry conditions. Tick. Fish and meat are stored in deep freezers. Tick. Milk is preserved for long periods by drying. No. उसके लिए हमें हीटिंग मेथड यूज़ करना पड़ता है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? द बिगेस्ट एडवांटेजेस, अगर हमारा खाना सेव हो जाता है तो हमारी फूड वेस्टेज नहीं होती. सो फूड प्रिजर्वेशन डिक्रीजेज द फूड वेस्टेज. इट इंक्रीजेज स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड. तो हम लंबे टाइम तक उस फूड को यूज़ कर सकते हैं. इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इवन इन ऑफ सीजन्स. अगर हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं तो हम उनको जब सीज़न ऑफ होता है और वो चीज़ें हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती तब भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं. लाइक पीज़, जो ग्रीन मटर्स होते हैं उनको मम्मा फ्रीजर्स में पैक करके रख लेते हैं ताकि जब ऑफ सीज़न है और मटर हमें मार्केट में नहीं मिलता है तो मम्मा उसे यूज़ कर सकते हैं. इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बीच रास्ते में ही ख़राब हो जाएंगे उनके लिए हम फ्रीजर्स के मेथड्स यूज़ करते हैं. लाइक एप्पल्स ऑफ कश्मीर, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर अवेलेबल इन दिल्ली एज वेल. तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज इट मेक्स फूड प्रिजर्वेशन मेक्स आवर फूड सेफ. प्रिवेंटिंग वेस्टेज. इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, मैनी पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड. उनको बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिलता है. सो वी मस्ट देयरफॉर प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड. तो हमें ट्राई करना चाहिए हम खाना वेस्ट ना करें. वी प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, टेक ओनली एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू कैन ईट. जितना आप खाना खा सकते हैं उतना ही प्लेट में लें. कुक एज मच फूड एज द फैमिली रिक्वायर्स. खाना भी उतना ही पकाएं जितना फैमिली को ज़रूरत होती है, बिकॉज एक्सेस फूड जो है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं. स्टोर द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर और इन अ कूल ड्राई प्लेस फॉर लेटर यूज़. स्टोर सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस इन क्लीन, ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर्स बिकॉज मॉइस्चर कैन स्पॉइल दैम. Store fruits and vegetables in refrigerator. We must not waste food. So remember, food preserved or saved is food produced. हम food प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट अगर हम खाने को ख़राब होने से बचाते हैं, उसको वेस्ट होने से बचाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ फूड प्रोडक्शन. सो फूड इज़ प्रीशियस. वी शुड नॉट वेस्ट इट. Food that can be stored for a long time. Milk, meat or pulses because they are dry. Eating spoiled food causes malaria, food poisoning or typhoid. Food poisoning. Dash milk remains good for a long time. Boiled milk or pasteurized milk you can write. Fruits do not go bad when kept in refrigerators. First method is canning, second is heating or boiling, third is pickling and fourth one is drying. Circle the odd ones in each group. Cereals, pulses, milk and spices. So answer will be milk. Jams, jellies, pickles and noodles. Answer will be noodles. Bacteria grow well at room temperature in the presence of moisture. Salt and sugar remove water or moisture from the food so that it will save. So we have completed our chapter. Now you learnt that food is very important for us. We should not waste it. So please check with mama that which method mama uses in the kitchen to get preserved the food.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।